In this video, we are going to study about the pharmaceutical application of radioactive substances. जो radioactive substances हैं वैसे तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ फार्मास्यूटिकल साइंस में ही है, बट डिफरेंट अदर फील्ड्स में भी हम इन्हें यूज़ करते हैं. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. रेडियो आइसोटोप्स फाइंड यूज्ड इन मेडिसिन्स इन 4 different ways. The first is radiation source in therapy. Next is radioactive tracers for diagnostic purpose. Third is the research, and next is the sterilization. So, radiation source in therapy. As far as the therapeutic use is concerned, radioisotopes are effective to these disease condition in which extensive cellular malfunctioning exists, like cancer. कैंसर में क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उनका जो सेल्स बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं पहले तो, ठीक है, ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं, तो जो सेल्स होते हैं उनका जो फंक्शन हो जाता है वो बंद हो जाता है होना. तो ऐसी कंडीशन में हम मोस्टली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का यूज़ करते हैं. रेडियो आइसोटोप्स में बी यूज इंटरनली और एक्सटर्नली. द टोटल डोज इन थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन may be calculated on the basis of effective half-life of isotope, concentration of isotope, type of energy of radiation that it emitted. Isotopes as external sources find their use in following. ये तो हमारे एस्पेक्ट थे कि किन किन टर्म्स में हम चूज़ करते हैं. नाउ द फर्स्ट इज द टेलीथेरेपी. इट एम्प्लॉयज गामा रेडिएटिंग आइसोटोप्स. फॉर एग्जाम्पल cobalt 60, cesium 137, and has been used for the treatment of lesions directly on the area affected. Next is the surface for contact therapy. It employs beta emitting radiations, beta emitting isotopes for dermatological and ophthalmological work. For example, phosphorus and strontium. Dermatological मतलब regarding skin and ophthalmological मतलब regarding the eye. Now radioisotopes as internal sources में हम कहाँ कहाँ देखते हैं. In implantation, it involves direct introduction of sealed radioactive source into tumor tissue, for example cobalt and iridium. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे रेडियो आइसोटोप है उसको डायरेक्टली हम उस ट्यूमर में इंसर्ट कर देते हैं. अदर्स में हम इसको इन्फ्यूजन्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सम स्पेसिफिक रेडियो आइसोटोप्स एप्लीकेशन आर, अब पर्टिकुलरली हम देखें तो कैल्शियम है जैसे, तो इट इज़ यूज टू स्टडी द बोन स्ट्रक्चर एंड इन कार्सिनोमा ऑफ बोन, ठीक है, बोन का जो कैंसर होता है. नेक्स्ट इज कार्बन. इट इज़ यूज्ड इन वेरियस स्टडीज टू डिटेक्ट द रिएक्शन मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, डिकम्पोजिशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. Cobalt, it emits beta and gamma radiation. It is used in the therapy where X-rays are used. It is also used for the sterilization of surgical materials and surgical dressings. हमें पता है कोई भी सर्जिकल ड्रेसिंग या सर्जिकल मटेरियल हम यूज़ करने से पहले उसका स्टेरिलाइजेशन करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट. नेक्स्ट इज द साइनोकोबालामाइन. इट इज़ द आइसोटोप ऑफ साइनोकोबालामाइन इज कोबाल्ट 57 एंड इट इज़ यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ अनीमिया. नेक्स्ट इज गोल्ड. इट फाइंड यूज एज नियोप्लास्टिक सप्रेसेंट, मतलब नियोप्लास्टिक मतलब कैंसर में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उसमें. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में ड्यूट्रियम एंड ट्रीट्रियम आर यूज टू डिटरमाइन द टोटल वाटर कंटेंट. Iron, it is used in the research studies relocated to utilization and absorption of iron salts. It also find use to measure the RBC survival time, कि कितने टाइम तक हमारी RBC लिविंग फॉर्म में है, ये भी हम डिटरमाइन करते हैं विद आयरन. Next is the nitrogen. It is useful in the investigation of amino acid and protein metabolism. Oxygen, it is useful in the studies of organic reaction. Next is the chromium. It is used to study red cell count and its survival time. Iodine is used as diagnostic and therapeutic agent in thyroid condition. Next is the thallium. It is used in investigation of the coronary artery disease and acute myocardial investigation. Next is the sodium. It is used for the estimation of extracellular fluid blood circulation rate. Next is the strontium. It is used for the radiotherapy of superficial carcinomas. These are the uses of certain respective uses of certain radioisotopes. Next we have radioactive tracers and diagnostic purpose. हमने अभी देखे थे 4 टाइप के जिनमें हमने इनको ब्रॉडली डिस्क्राइब करा था. उसमें से द सेकंड वन इज रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स एंड डायग्नोस्टिक पर्पस. अब रेडियो आइसोटोप्स आर यूज फॉर द डायग्नोसिस एंड दे शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. क्या क्या होना चाहिए. द हाफ लाइफ इन रेंज ऑफ 6 to 12 hours. दे शुड बी रीडली अवेलेबल, आसानी से मिल जानी चाहिए. मिनिमम रिटेंशन इन बॉडी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट विच विल परमिट इट्स डिटेक्शन एंड एक्यूरेट मेजरमेंट. सम ऑफ द रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स दैट आर यूज्ड आर, अब हमें इसमें कौन कौन से हम यूज़ कर रहे हैं. साइनोकोबाइलामाइन फॉर मेजरिंग द GFR. GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट.
मतलब कि हमारी जो किडनी है वो कितने टाइम में यूरिन का फॉर्मेशन अपनी साइकिल कंप्लीट करके यूरिन का फॉर्मुलेशन कर पा रही है, ठीक है। तो हम इसमें यूज़ करते हैं साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट इज़ द फेरिक सिट्रेट फॉर डायग्नोसिस ऑफ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं। नेक्स्ट इज सोडियम आयोडाइड फॉर डायग्नोसिंग द फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। सोडियम आयोडो हाइप्यूरेट टू स्टडी द रीनल फंक्शंस, मतलब किडनी के फंक्शन स्टडी करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन emitted from the source or are used for the sterilizing pharmaceuticals in their final pack containers and surgical instruments in hospitals. Cobalt और सीरियम may be used for the sterilizing surgical instrument. रिसर्च में बायोलॉजिकल और मेडिसिनल स्टडीज़ भी कैरी आउट हम करते हैं इनसे। और अदर एप्लीकेशन इंक्लूड रेडियो इम्यूनो एसेज, सॉल्युबिलिटी डिटर्मिनेशन, रिकवरी इंडिकेशन इन एनालिसिस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ये सब हम इसमें परफॉर्म करते हैं। Next, the radio contrast agents are the type of medical contrast medium that are used to improve the visibility of internal bodily structure. X-ray based imaging technique, for example barium compounds. So with this we come to the end of the topic of pharmaceutical application of radioactive substances. सबसे पहले हमने देखा, एक बार रिकॉल करते हैं, रेडिएशन सोर्सेज इन थेरेपी, फिर हमने इसके कुछ कंपाउंड्स देखे, फिर देखा फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, एंड देन वी सॉ द रिसर्च एंड द स्टेरिलाइजेशन पार्ट, और इसके अलावा हमने कुछ अदर एप्लीकेशंस देखी, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, और ये हमारे सारे एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज